Good morning, students. I hope all of you are very well at your home. In previous lecture, we have seen some question of exercise 14.2, which was based on identities. Today, again, we will continue this exercise 14.2. Okay. So, I request to all of you, please open your textbook and copy for writing. Okay. So, the second part of question number 2, from here we will continue 63a square minus 112b square. Now, as you know that 63 is not a perfect square number. So, what will we do here? So, initially we will take some factor, we will take common sum factor from these two terms. Okay. It means we can write 63 as 7 9s a square and 112 can be written as 7 16 b square. Okay. Now, you can see 7 is common in both the terms. So, we can take 7 as a factor. So, the remaining portion will be 9a square minus 16b square. Again, we can use identity for these two terms. Okay, it means we can write 9a square like 3a whole square minus 16b square like 4b whole square. Okay. Now, you can see here these two terms are similar as a square minus b square. It means we can use the identity a square minus b square, which is equal to a plus b and a minus b. Okay. I hope all of you know very well. Now, again we can write 7 3a plus 4b and 3a minus 4b. This is the result. I hope you understood. Now, the next part, I am going to erase it. So, please pause the video and write down in your copy. Okay. The next part is 49x square minus 36. Okay. So, all of you can see here in this question both the terms can be changed into a square number. Okay. It means 49x square can be written as 7x whole square and 36 can be written as 6 whole square. It means these two terms are similar like a square minus b square. So, हम इसे कंपेयर कर सकते, कंपेयरिंग विथ a square minus b square which is equal to a plus b, a minus b. ओके. तो आइए इसको करते. तो क्या लिखेंगे इसको? यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग a square minus b square. So, a plus b, a minus b. Now, compare given expression with this identity. So, we can write 7x plus 6 and 7x minus 6. Okay. 7x whole square minus 6 whole square. So, this is very easy question, very easy question. You need to just compare. Okay. Now, the next part, fourth part, 16x to the power 5 minus 144x to the power 3. Now, again you can see here the power on the x is 5 and the power on the x in this term is 3. So, we can take x to the power 3 as a common. So, x to the power 3, if we will take common, then the remaining portion will be 16x square minus 144. Okay. Now, x to the power 3, we can use curly bracket for making
this term as whole square. Okay, so 4x whole square minus 12 square. Again we will compare this expression with a square minus b square, so it can be written as 4x plus 12 and 4x minus 12. Okay, I hope you understood. Come for the next question or next part. Fifth part, L plus m whole square minus L minus m whole square. Okay, you can do this question in different way. It means we can expand both the terms by identity a plus b whole square and a minus b whole square, and you can also do it directly as a square minus b square. तो चलिए देखते हैं दोनों मेथड से कि किस तरीके से करना है. पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की हेल्प से इसे एक्सपेंड करेंगे. सो वी कैन राइट एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर. ओके, माइनस एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ की. सेकेंड वाले में a माइनस बी होल स्क्वायर. अभी हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है. एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर. इस माइनस के कारण सभी के साइन बदल जाएंगे क्योंकि साइन का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है. तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lm एंड माइनस एम स्क्वायर. नाउ आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स. एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर बोथ आर लाइक बट साइन आर अनलाइक, सो both will be cancelled. Okay, m square से m square भी कैंसिल हो जाएगा. फाइनली 2lm and 2lm become 4lm. ओके, तो ये आपका रिजल्ट होगा. अगर इसको दूसरे मेथड से करना है तो आइए उस तरीके से भी देखते हैं. यहाँ पे हम इसे कंप्लीट टर्म समझेंगे, इस पूरे को a से कंपेयर करेंगे. Then as we know that a square minus b square is a plus b and a minus b. Okay, so what is a? A means whole term. Okay, L plus m और b means L minus m. तो जहाँ a होगा वहाँ L plus m लिखेंगे. So L plus m plus b को कंपेयर करेंगे L minus m से. और नेक्स्ट वाले में अगेन L प्लस एम माइनस. अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ माइनस का साइन है, तब हमें क्या करना है, माइनस जहाँ पर भी हो वहाँ ब्रैकेट का यूटिलाइजेशन करेंगे क्योंकि सेकेंड वाले टर्म में फिर साइन बदलेगी. ओके, L माइनस एम. ओके, तो आइए इसको ऑब्जर्व करते हैं. m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l. और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो L प्लस m, ये साइन चेंज होगा, माइनस एल प्लस एम. ओके, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली 2l इंटू 2m. सो योर रिजल्ट विल बी 4lm. ओके, तो ये भी एक तरीका है, यानी आप बहुत से क्वेश्चन में बहुत से तरीके यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, Similarly, sixth part, 9x square y square minus 16. हाँ, तो बच्चों बताइए इसमें हम लोग क्या करेंगे. यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो x पर भी स्क्वायर है, y पर भी स्क्वायर है और 9 को लिखा जा सकता है 3 का होल स्क्वायर. ओके, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3xy होल स्क्वायर और 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर. ओके, तो अगेन ये कंपेयर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से. इट मीन्स a प्लस बी 3y प्लस 4 एंड a माइनस बी इट मीन्स 3xy माइनस 4 विल बी द रिजल्ट. ओके, और जहाँ पर आप जो भी आइडेंटिटी यूटिलाइज करें आगे
ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दें कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया जाए, तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यानी ये एक आइडेंटिटी है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया कि अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलता है तो आप उसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, या अगर कोई एक्सप्रेशन आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलता है तो आप उसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ हमें ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में मिल रहा है। ओके, तब हम क्या लिख सकते हैं इसे, x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर। ओके, तो आप इनके टर्म्स को ब्रैकेट के बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यानी ये मैच कर रहा है किस आइडेंटिटी से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a का मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा x माइनस वाई प्लस b, b का मतलब z, और a माइनस बी, a का मतलब x माइनस वाई और b का मतलब z। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है, या तो आप कॉमन लेंगे, या लास्ट टाइम में अभी हम लोगों ने क्या किया था, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिलता है तो हम उसे a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो आइए इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले 2ab को आइडेंटिफाई कीजिए, 2ab। तो अगर आप गौर करें तो 2ab वाला फॉर्मेट ये लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर अगर आप 2ab का फॉर्मेट ये है तो हमें कौन सा टर्म कंसिडर करना होगा, जिसमें b वेरिएबल हो, जिसमें c वेरिएबल हो, यानी ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखना होगा। तो आइए करते हैं 25a स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 5a होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे आप, माइनस कॉमन लेंगे तब क्या होगा, 4b स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब वापस से आप 5a होल स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, 4b को 2b का होल स्क्वायर माइनस, और 49 को लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। तो 2a का मतलब 2b और b का मतलब 7c। तो आइडेंटिफाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28bc, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो रहा है। तो आपने जो a और b कंसीडर किया है वो करेक्ट है। तो 5a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, a मीन्स 2b और b मीन्स 7c होल स्क्वायर। वापस से ये कंपेयर होगा किस आइडेंटिटी से, इस पूरे को ब्रैकेट के बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरा b होगा, ये पूरा a होगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, इट मीन्स a प्लस b, 5a प्लस b यानी 2b, एंड a माइनस b, a यानी 5a माइनस, जहाँ माइनस होगा तो अगली वैल्यू आप ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि साइन बदलता है, 2b माइनस 7c। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, 5a 2b माइनस 7c
और यहाँ कर्ली ब्रैकेट स्मॉल में चेंज हो जाए क्योंकि स्मॉल को हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो 5 है -2b + 7c विल बी द आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आपने नोटिस किया कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 3. Question number 3 of exercise 14.2 says factorize the expressions. Okay. Factorize the expressions. दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। इसका पहला पार्ट दिया हुआ है ax² + bx। अब यहाँ पे हमें जो भी आइडेंटिटी या जो भी मेथड समझ में आएगा उसको अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम हार्डली क्या कॉमन ले सकते हैं, जो लीस्ट पावर वाला वेरिएबल है x। ओके, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ax बचेगा और यहाँ पर b बचेगा। ओके, तो ये फैक्टराइज हो गया। नंबर 2, 7p² + 21q²। यहाँ से भी आप हार्डली 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा p² + 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा 3q²। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर बैठेंगे कि a + b a - b के फॉर्मेट में लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, थर्ड पार्ट 2x³ + 2xy² + 2xz²। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन हो सकता है, साथ ही साथ x भी कॉमन लिया जा सकता है। ओके, तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x² क्योंकि x³ था, यहाँ बचेगा y² और यहाँ बचेगा z²। तो आप देख रहे हैं काफ़ी आसान क्वेश्चंस, काफ़ी इजी क्वेश्चंस जो हैं दिए गए हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है am² + bm² + bn² + an²। ओके, तो यहाँ अगर आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 4 टर्म्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे दो टर्म्स का। इन दोनों टर्म्स में m² कॉमन है, यहाँ पर n² कॉमन है। ओके, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं या एक ऑर्डर को भी फॉर्मेट, एक ऑर्डर में हम चाहे तो ले सकते हैं इसको। यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं तो m² + n² बचेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या करना है, a m² + b m², तो m² आप कॉमन ले लें तो a + b बचेगा। ओके, m² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a + b, और यहाँ से n² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b + a, जिसे आप चाहें तो a + b लिख सकते हैं। दोनों पॉजिटिव टर्म है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 4 टर्म्स था, रिड्यूस होकर 2 टर्म्स हो गए। इन दोनों टर्म्स में a + b कॉमन हो रहा है, सो a + b कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बचेगा, m² + n²। ओके, तो ये आंसर होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें कॉपी पे। Now the next part, LM + L + M + 1। ओके, यहाँ ध्यान देना है कि L और 1 में कंफ्यूज मत होइएगा।
ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों टर्म्स में l कॉमन हो रहा है, l कॉमन लेंगे बचेगा m+1। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो सभी का फैक्टर 1 होता है, तो 1 कॉमन लेंगे बचेगा m+1। अब यहाँ पे m+1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा l+1। ओके, तो ये आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। ओके, बाकी क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।